Very good evening, friends. Today we will have the basic coverage of SEBI regulations. SEBI regulations, there are four regulations. Basically, there are many, but uh, there are four only in our syllabus. ICDR, Issue of Capital and Disclosure Requirements Regulations, 2009. Then Delisting of Equity Shares Regulations, 2009. Then Substantial Acquisition of Shares and Takeovers Regulations, 2011. And LODR, LODR, Listing Obligations and Disclosure Requirements Regulations 2015. So these are the five regulations which we are required to cover. They may ask just one question or they may not ask at all, because these four regulations are out of the 19 acts which are covered in our syllabus, and for that 11 marks are there. One page summary. Before the day of the exam, you should have this one page summary ready with you. You should write all the regulations, and below that you can prepare a chart like this, ICDRDL, and you can note down the 10 or 15 important points. We will also help you in this, but you should have your own notes. Let us start with ICDR. ICDR regulations. In ICDR regulations, one of the important concepts is of a promoter, because even if you are not named as a promoter, you may be identified or you may be deemed as a promoter, and definitely there are certain restrictions, and the definition of promoter and deeming fiction of promoters, they are given in only ICDR regulations. So if you read the other regulations like substantial acquisition and takeover code or listing obligations and disclosure requirements, they will again refer you back to ICDR regulations. So I have made a case study. Okay, you are a young professional who has just passed out of college and started your practice as an investment consultant. An industrialist approaches you and expresses his intention to tap the capital market. He wants to raise 100 crores and wants you to make a presentation before his peers as to the types of alternatives available. He already has a listed company and can tap the market through that company as well. So before you make a detailed presentation, he requests you for a synopsis of the alternatives to assess your knowledge and understanding of the subject. Now you can suggest him that there are different options available. There are different conditions based on past track record. Since you are already having a listed company in your fold, then there are different conditions based on past track record. And past track record quality also has to be assessed. Then PE investor and professionals. So how to keep them outside the definition of promoters? Because there may be certain private equity investors and professionals, and they may not like to be identified as a promoter. So in that case, you can constitute an advisory council and keep their stake below 20%. Because in any case, if you are holding more than 20%, then there is hardly any escape. Consider having a group of NRI friends. Consider the option of a professionally managed company. In case of recently, there is a trend of forming these professionally managed companies. Then avoid layering of entities, because in case of layering of entities, this condition of 20% also applies. Then promoters contribution. It is normally more than 20%, and lock-in period is also there for promoters 3 years. This is what you are suggesting to your client who has come to you. Then public holding in listed company, it should be more or less more than 25%. And subscription to public issue, it should be more than 90%. And same percentage shall work for delisting as well. Then underwriters, qualified institutional buyers, anchor investors, these different concepts are there. Then pricing. Pricing is another determinant which you have to decide
What should be the face value? It should be 1 to 10 or more. Then announcement about price. You want to announce the price in the prospectus or you want to announce it afterwards. Then rights issue, preferential issue, and all those things. So there are various things which you have to take into account before suggesting an alternative available to tap the capital market. SEBI guidelines, broad discussion headings. These are the broad discussion headings of SEBI guidelines. First is the public issue, as we all know, then rights issue. Rights issue are by existing listed companies. Then bonus issue by existing listed companies. Preferential allotments, then issue of IDRs, then qualified institutional placements and institutional placement program, and issue of specified securities by small and medium enterprises. These are some of the ways in which we may tap the capital market. In case of public issue, in case you are going to have a public issue, so that will depend upon whether you have a past record or not. In case you have a past track record, then you have the two options in this case. What are the two options? The two options are you can either opt for book building route or you can opt for fixed price route. But there may be certain companies which may not be having any past track record. In that case, you have to fulfill both the conditions. Pricing shall be based upon the book building process and at least 75% of the issue size must be allotted to qualified institutional buyers. We will study all these concepts in detail. Now, who can be a promoter? Because as I told you, the definition of promoter is given only in ICDR regulations. So under the ICDR regulations, a person may be classified as a promoter if such person is named as a promoter in the draft offer document, or annual returns filed by the company. Such person has control over the affairs of the company, either directly or indirectly, or the board of directors of the company acts in accordance with the advice or instructions of such person. Further, control has been defined in the Companies Act and SEBI Substantial Acquisition of Shares and Takeovers Regulations 2011 Takeover Code. So control, what does it mean? Control means the right to appoint majority directors or to control the management or policy decisions exercisable by a person or persons acting individually or in concert, directly or indirectly, including by virtue of their shareholding, management rights, an agreement, or in any other manner. So these are some of the conditions. Either you are named or you have control, or the board of directors, they act according to your advice or instructions. And then definition of control as per SEBI Takeover Code. Who are the persons who are exempted from being classified as promoters? So the ICDR regulations, they categorically exempt persons advising the board of directors merely in their professional capacity. Suppose you are a professional, you are advising them, because what we have read? We have read that if board of directors act in accordance with the advice or instructions of such person. But if you are acting in a professional capacity, then you are not a promoter. Further, financial institutions, scheduled commercial banks, foreign portfolio investors, other than individuals, corporate bodies and family offices, mutual funds, venture capital funds, alternative investment funds, foreign venture capital investors, insurance companies, or any other categories of entities as specified by SEBI, who in their capacity as investors hold 20% or more in the equity share capital of the company are also exempted from being classified as promoter. Because the norm is that if you hold more than 20%, then you are a promoter. But these classes, basically these are qualified institutional buyers. So financial institutions, scheduled commercial bank, foreign portfolio investors, even if they hold more than 20%, so they are exempted from being classified as promoters. Then what PE investors should consider while negotiating special rights in the company? Because a person is giving money to the company and definitely he would like to have some special rights, and still he would not like to be identified as a promoter. So what should be the precautions? So whether a PE investor may be classified as a promoter of a company is largely based on the
shareholding and control exerted by the P investor in the company. So there are three possible scenarios in which a discussion on the definition of promoter becomes relevant, along with key considerations for P investors while negotiating special rights in a company. First, the private equity investor is a minority shareholder and there are other majority shareholders. So in this case, it is highly unlikely that he may be identified as a promoter, because some people, they want to give money to the company, but they don't want to be tagged as a promoter, because as a promoter you have got extra liabilities. You may even face imprisonment or you may face fine penalties. So they may not like to be identified as a promoter. So P investor may be a minority shareholder and there are other majority shareholders. So in this case, he is safe. So it is highly unlikely that he will be identified as a promoter, because he doesn't have control. And the board of directors, they would also not act. So even if a minority holding P investor is granted certain special rights, so what they do is, so he is giving money to the company, so definitely he would like to exercise some sort of control. So through constitutional documents or through agreements, shareholders agreement is made. Such special rights are usually limited to rights such as appointment of a nominee director. भाई वो पैसे दे रहा है कंपनी में, ठीक है. अभी भी मेरे पास एक एग्रीमेंट बनने के लिए आया हुआ, गुप्ता जी किसी ने पैसे लगाने कंपनी में, तो उसका एग्रीमेंट जरा देख लेना. तो इसमें ये रहता है कि भाई कुछ ना कुछ तो उसको दोगे ना आप. तो आप उसको क्या कर रहे हो कि भाई एक नॉमिनी डायरेक्टर आप अपॉइंट कर दो, या कुछ इन्फॉर्मेशन राइट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना. So however, due care should be taken by a P investor while negotiating for such special rights to ensure that these rights do not tantamount to control. ठीक है, अगर कंट्रोल में कवर हो गया फिर भी बन जाएगा प्रमोटर. ठीक है. अब ये क्या है, ये पी इन्वेस्टर ही शुड इंश्योर कि भैया एनुअल रिटर्न, ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट, रेगुलेटरी फाइलिंग, कॉर्पोरेट फाइलिंग, लाइसेंसेस, एनी अदर मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट्स, वहां पर भी उसका नाम जो है एज ए प्रमोटर नहीं जाना चाहिए. अगर वहां पर भी नाम प्रमोटर लिख दिया तो भी प्रमोटर मान लिया जाएगा. दूसरा है कि पी इन्वेस्टर हैज 25% और मोर शेयर होल्डिंग अलॉन्ग विद अदर मेजॉरिटी शेयर होल्डर. तो इस केस में क्या होगा, इस केस में ज्यादा लाइकलीहुड है कि इट इज वेरी लाइकली दैट पी इन्वेस्टर विल बी व्यूड एज ए प्रमोटर. ठीक है, क्योंकि इतनी शेयर होल्डिंग होने पे क्या होगा कि पी इन्वेस्टर वुड हैव सम अनाउंस्ड स्पेशल राइट्स. ठीक है भाई, एक तो राइट टू अपॉइंट मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स आ जाएगा, एफर्मेटिव राइट्स आ जाएंगे, एंड रिजर्व्ड मैटर राइट्स ओवर द फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी. तो इस केस में क्या है कि पी इन्वेस्टर मस्ट एक्सरसाइज कॉशन टू इंश्योर दैट सच एडिशनल स्पेशल राइट्स आर नॉट कंसिडर्ड एज कंट्रोल. तो कंट्रोल के डेफिनेशन में नहीं आना चाहिए. ठीक है, अब कंट्रोल के डेफिनेशन में नहीं आने के लिए क्या करना है, वो क्या करेगा, पी इन्वेस्टर कुड कंसिडर इंक्लूडिंग ए प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट्स ऑफ ए कंपनी एंड इन द शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट दैट द स्पेशल राइट्स ऑफ द इन्वेस्टर विल ऑटोमेटिकली फॉल अवे व्हेन द इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी आर लिस्टेड. ठीक है, इसमें क्या करते हैं भाई, अभी क्या है, अभी पैसे चाहिए कंपनी को. ठीक है, उन्होंने लिस्ट कराना है भाई, लिस्ट करने के बाद पैसे आ जाएंगे, जब आ जाएंगे तो मेरे राइट्स कम हो जाएंगे. ठीक है, pursuant to this, the P investors will not enjoy any rights in the company which are disproportionate to their holdings. Further, there can be a provision to reinstate such rights in case the IPO is withdrawn or not successful. भाई IPO अप्लाई, वो कहता है जी IPO अगर सक्सेसफुल हो गया, लोग आ जाएंगे, पैसा आ जाएगा, मेरे राइट्स कम कर देना. अगर IPO सक्सेसफुल नहीं आता तो ठीक है, जो मेरे राइट्स रीइंस्टेट कर दे. सोनी जी आप देखते रहेगा, कोई क्वेश्चन हो तो. ठीक है, further, as in the case of minority shareholding, care must also be taken to ensure that the annual returns, draft offer documents, ठीक है ना, तो वहां पर जो है, वहां पर अगर आइडेंटिफाई हो गया तो फिर वो प्रमोटर मान लिया जाएगा. अगला है जी कि पी इन्वेस्टर इज द मेजॉरिटी शेयर होल्डर. अब जहां पर ये जो प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर है ये मेजॉरिटी शेयर होल्डर है और दूसरा कोई शेयर होल्डर है ही नहीं हु फिट्स द क्राइटेरिया टू बी आइडेंटिफाइड एज ए प्रमोटर. तो इस केस में तो इट इज मोस्ट लाइकली कि भाई वो प्रमोटर ही माना जाएगा. ठीक है, फर्दर इट इज लाइकली दैट इन सच ए सिनेरियो द पी इन्वेस्टर वुड होल्ड स्पेशल राइट्स. ठीक है ना, तो वहां पर कंट्रोल भी उसके पास आ जाएगा. अब अगर मान लो नहीं बनना चाहते, पैसे भी देना चाहते हो, तो क्या करेंगे, तो दे विल टेक द रूट ऑफ आइडेंटिफाइंग द कंपनी एज ए प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी.
ठीक है, with no identifiable promoters. In order to do this, the PE investors, while negotiating the special rights, should ensure that such rights do not impinge on the following. वो क्या कहेंगे कि भाई कंपनी जो है प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी है विद एन इंडिपेंडेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, एंड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ सच कंपनी शुड नॉट हैव एन ऑब्लिगेशन टू एक्ट अपॉन द एडवाइस और डायरेक्शंस ऑफ द पी इन्वेस्टर. भाई उसकी डायरेक्शन पे चलना जरूरी नहीं है, डिसीजंस मेजॉरिटी वोट से लिए जाएंगे. जो डे टू डे ऑपरेशंस है दे आर कैरिड आउट बाय प्रोफेशनल्स हु रिपोर्ट टू द बोर्ड, ठीक है, एंड पी इन्वेस्टर मस्ट नॉट बी ग्रांटेड एनी राइट टू अपॉइंट की मैनेजरियल पर्सन, ठीक है. और ये जो डायरेक्टर नॉमिनेटेड बाय द पी इन्वेस्टर ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी should not have any contractual rights which will entitle him or to influence the board or management decisions, ठीक है. तो अगर इस तरह से आप प्रोफेशनली मैनेज्ड कोई कंपनी बना लो तो उसमें फिर पॉसिबिलिटी आपकी कम हो जाती है. अब जैसे इंडिया में कुछ कंपनीज बनी, इक्विटास होल्डिंग कंपनी, तेजस नेटवर्क्स, उज्जवन फाइनेंशियल सर्विसेज, इंडिया एनर्जी एक्सचेंज, इन्होंने अपने आप को लिस्ट कराया विदाउट हैविंग एन आइडेंटिफाइबल प्रमोटर, ठीक है, डिस्पाइट वन और मोर शेयर होल्डर हैविंग सब्सटेंशियल शेयर होल्डिंग. एक आध की सब्सटेंशियल शेयर होल्डिंग थी, उसके बाद में उन्होंने कहा कि हमारा कोई आइडेंटिफाइबल प्रमोटर नहीं है. इन्होंने ये कहा कि दे आर ए प्रोफेशनली मैनेज्ड एंटिटी एंड डू नॉट हैव एनी आइडेंटिफाइबल प्रमोटर्स. आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोमोटर्स वेयर इन्वेस्टमेंट्स आर थ्रू मल्टी लेयर्ड एंटिटीज. अगर आपने कंपनी, कोई होल्डिंग कंपनी, कोई सब्सिडरी कंपनी, तो उस केस में आइडेंटिफाई कैसे होगा, ठीक है. ऑफन जो प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स हैं, द स्ट्रक्चर देयर इन्वेस्टमेंट्स इनटू कंपनी थ्रू मल्टी लेयर्ड एंटिटीज विद द इमीडिएट होल्डिंग एंटिटी ऑफ द कंपनी बीइंग merely an इन्वेस्टमेंट व्हीकल, ठीक है, एंड नॉट ए सब्सटेंटिव एंटिटी. जो मेन होल्डिंग कंपनी होती है वो क्या होती है, वो एक इन्वेस्टमेंट व्हीकल होता है. Therefore, in order to identify the entity exercising ultimate control over the company, a case-to-case factual analysis is required to be carried out. ठीक है. अब इस केस में क्या होगा, the promoter entity जो है it should be a substantive entity and not merely an entity created for holding investments. Operate as a separate entity with its own independent decision-making mechanism and it should not act on the instructions of any other entity. इसके बाद में ये है कि हु कैन बी क्लासिफाइड एज ए मेंबर ऑफ ए प्रोमोटर ग्रुप, ठीक है. एक रिलेटेड इसमें डिस्क्लोजर है आईसीडीआर रेगुलेशंस में. इट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ ए प्रोमोटर ग्रुप. आईसीडीआर रेगुलेशंस प्रोवाइड फॉर ए मैकेनिज्म टू आइडेंटिफाई मेंबर्स ऑफ ए प्रोमोटर ग्रुप. Such members are required to provide certain confirmations and disclosures in the offer document. अब ये एक हमने इलस्ट्रेशन दी है, इसमें बताया गया है कि कैसे मेंबर्स ऑफ प्रोमोटर ग्रुप विल बी आइडेंटिफाइड. तो अब जैसे एक इधर कंपनी है, ठीक है ना, ये, और इधर में ये कंपनियां हैं, इस तरह से इन्होंने आपस में जो है एक कंपनी की होल्डिंग दूसरी कंपनी में दी गई है. ये पूरी हमने इलस्ट्रेशन को एक्सप्लेन किया है. इसमें क्या है, ये सी जो है ये कंपनी है, ही इज द कंपनी प्रपोजिंग टू अंडरटेक द आईपीओ, ठीक है. अब आप देखो सी कहां पर है, सी है यहां पर, ठीक है, और पी है हमारा प्रोमोटर. प्रोमोटर कहां बैठा है, प्रोमोटर यहां पर है, ठीक है. एस हो गई हमारी सब्सिडरी और एच हो गई होल्डिंग कंपनी. तो ये नीचे सब्सिडरी कंपनी है, ये इधर है होल्डिंग कंपनी, ठीक है जी. बी है एनी कंपनी विच होल्ड्स 20% और मोर ऑफ द इक्विटी कैपिटल ऑफ द प्रोमोटर, ठीक है. बी एक कंपनी है जिसमें 20% से ज्यादा कैपिटल है, ये बी कंपनी है, ठीक है. बी कंपनी में ये 20% से ज्यादा इसकी कैपिटल है. और ए क्या है, एनी कंपनी इन विच द प्रोमोटर होल्ड्स 20% और मोर, ठीक है. इसमें बी में क्या है, कंपनी है जो होल्ड कर रही है, और इसमें क्या है, ए वाली में प्रोमोटर होल्ड कर रहा है कंपनी में, ठीक है. ये प्रोमोटर बीच में आया, ठीक है. और एम क्या है, एम एक ग्रुप ऑफ कंपनीज है या इंडिविजुअल, ये एम है, ठीक है, इधर. तो ये क्या कर रहा है, एक ग्रुप ऑफ कंपनीज और इंडिविजुअल्स कॉम्बिनेशन दे रहा, होल्ड 20% और मोर ऑफ द इक्विटी कैपिटल ऑफ द कंपनी एंड ऑल्सो इन अनदर कंपनी. अब इस कंपनी में भी है और दूसरी कंपनी एक एल है, यहां पर भी है, ठीक है. तो इस केस में प्रोमोटर का आइडेंटिफिकेशन कैसे होगा,
बल्कि ये तो बहुत सिंपल इलस्ट्रेशन है। इस तरह से और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मल्टी लेयरिंग होती है। तो मल्टी लेयरिंग में कैसे आइडेंटिफाई होगा। अब इसके बाद में देखते हैं हम कि बुक बिल्डिंग क्या प्रोसेस है। बुक बिल्डिंग एक प्रोसेस है, जैसे हमने शुरू में क्या देखा था, हमने शुरू में देखा था कि भाई अगर आपके पास ट्रैक रिकॉर्ड है, आपको अगर इश्यू लाना है तो इश्यू लाने में दो रास्ते हैं आपके पास, ठीक है। एक तो बुक बिल्डिंग रूट है और एक है फिक्स्ड प्राइस रूट, आपके पास अगर ट्रैक रिकॉर्ड है। अगर आपके पास ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है तो आप क्या करोगे कि दोनों कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेंगी, बुक बिल्डिंग प्रोसेस भी आपको लाना पड़ेगा और 75% जो आपको क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स से जो है सब्सक्राइब कराना पड़ेगा इस केस में। तो बुक बिल्डिंग जो प्रोसेस है, इट इज ए प्रोसेस फॉर एफिशिएंट प्राइस डिस्कवरी ऑफ शेयर्स। Under it, the company offering the shares fixes a price range depending on an ascertained market valuation, which it estimates is the accurate value of the business. ठीक है। तो बुक बिल्डिंग में क्या है कि आपने प्राइस फिक्स नहीं किया, आपने दो चीजें फिक्स की। एक तो फ्लोर प्राइस फिक्स किया कि भाई इससे कम पे तो हम देंगे नहीं, ठीक है। और दूसरा आपने क्या फिक्स किया, कैप प्राइस। और फिक्स प्राइस और कैप प्राइस के बीच में डिफरेंस जो है वो 20% से ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। तो फ्लोर या मिनिमम प्राइस ये है जहां पर कंपनी इससे कम पे तो बेचेगी नहीं, और मैक्सिमम प्राइस या कैप प्राइस पे दे दिया। जो डिफरेंस है इसके बीच में 20% से ज्यादा नहीं हो सकता। तो अगर मान लो फ्लोर प्राइस 250 है तो अपर कैप प्राइस आपका 300 से ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। इसमें क्या होता है, बिडिंग होती है जो बुक बिल्डिंग प्रोसेस में। तो ड्यूरिंग द आईपीओ पीरियड बिड्स आर रिसीव्ड फ्रॉम इन्वेस्टर्स एट वेरियस प्राइस। भाई कोई कहेगा कि भाई ऐसे है कि भाई ऐसे मैंने लेने तो हैं, ठीक है ना, भाई मेरे को 250 पे दे देना, अगर 250 पे नहीं मिले तो मेरे को 300 पे दे देना, ऐसा भी करते हैं लोग, ठीक है। तो इसमें प्राइस बैंड फिक्स कर देते हैं। तो ड्यूरिंग द आईपीओ पीरियड बिड्स आर रिसीव्ड फ्रॉम इन्वेस्टर्स एट वेरियस प्राइसेस व्हिच आर अबव और इक्वल टू द, भाई फ्लोर प्राइस से कम पे तो मिलेगा ही नहीं, ठीक है ना। अब एक कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू किए, इसका प्राइस बैंड था 250 टू 300, ठीक है। एप्लीकेशंस आ गई इनके पास, 10,000 शेयर तो आ गए भाई 250, ठीक है, 1 लाख है, ठीक है ना। 50,000 ने कहा जी हम 275 पे ले लेंगे, और 60,000 ने कहा जी हम 300 पे ले लेंगे, ठीक है ना। अब इनके पास कितने आ गए, 1,20,000। इन्होंने देने कितने, 1 लाख शेयर, ठीक है। अब नेचुरली ये तो चाहेंगे भाई 60,000 वालों को जो 300 उनको तो दो, ठीक है ना। अब सर एक राजीव सर का फोन, हाँ एक मैसेज है, हाँ राजीव सर का एक मैसेज है। हाँ, क्या बोल रहे हैं, एक मिनट में पढ़ रहा हूँ, निकल गया। एक सर ये राजीव चोपड़ा साहब का एक क्वेश्चन है। हाँ इनको अनम्यूट ही करना पड़ेगा सर, मैं क्वेश्चन से समझ नहीं पा रहा हूँ। विल बी कंसिडर्ड एज प्रमोटर ऐसा करके लिखा है इन्होंने, लेकिन हम आगे निकल गए थोड़ा सा, तो अनम्यूट करके या लास्ट में टेकअप करें। कोई लास्ट में ले लेंगे, लास्ट में ले लेंगे इसको, ठीक, क्योंकि सब्जेक्ट है बहुत बड़ा, है ना, तो इसको लास्ट में ले लेंगे, क्वेश्चन आंसर लास्ट में ले लेंगे। राइट। अब इसमें क्या है कि जब बिड विंडो क्लोज हो जाएगी, भाई बिडिंग हो गई, ठीक है ना, आपके पास 1 लाख शेयर थे, 1,10,000 के आपके पास ऑफर्स आ गए, तो जो फाइनल प्राइस है अब आपको कट ऑफ प्राइस डिसाइड करना है। अब ये आपको डिटरमिन कर किस बेसिस पे करोगे, जो प्रोपोर्शन ऑफ एप्लीकेशंस रिसीव्ड है आपके पास, ठीक है ना। तो अगर इसमें क्या है कि व्हाइल अप्लाइंग इफ ए रिटेल इन्वेस्टर इज नॉट श्योर, ठीक है ना, वो क्या करता है कि वो एक कट ऑफ ऑप्शन यूज करता है। मैंने बताया भाई वो लेना तो चाहता है, अब उसको पता नहीं भाई 250 पे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो क्या है कट ऑफ ऑप्शन यूज करता है। तो चूजिंग दिस ऑप्शन विल इंश्योर दैट आवर एप्लीकेशन इज कंसिडर्ड वैलिड एट व्हाटएवर प्राइस इज डिटरमिन्ड इन द प्रोसेस, ठीक है ना। तो लेकिन इस केस में क्या है, जो पेमेंट या एप्लीकेशन मनी है ये उसको कैप प्राइस के ऊपर देनी पड़ती है। अब इसमें क्या है, मान लो एक इन्वेस्टर ने कट ऑफ प्राइस चूज किया, ठीक है, और एप्लीकेशन मनी दे दी 300 के ऊपर, और अगर जो कट ऑफ प्राइस है इट इज लोअर देन द कैप प्राइस तो उसको रिफंड मिल जाएगा, ठीक है, और द मनी गेट्स एडजस्टेड विद एनी ड्यू पेमेंट, जो बाद में अगर पेमेंट होगी। इन द एग्जांपल टू इशू ऑल 1 लाख शेयर्स मिनिमम प्राइस जो है आपको 275 रखना पड़ेगा, ठीक है ना। भाई आपके पास 10,000 आई हैं 250 पे, 50,000 आई हैं 275 पे, 60,000 आई हैं 300 पे,
तो आपको 275 तो मिनिमम रखना ही पड़ेगा ना, 275 से कम तो आप रख नहीं सकते। ठीक है, तो क्योंकि एप्लीकेशन 50,000 आई है आपके 300 की और 60,000 आई 275 की, ठीक है ना, तो ये आपको मिली है 275 या उससे ज्यादा। अब क्या करेंगे, जिनका बिड प्राइस 275 से कम था उनको तो दे देंगे वापस, ठीक है ना। जिन्होंने 300 पर लिया है उनको भी वापस मिल जाएगा, क्योंकि 275 पे अलॉट कर रहे हैं ना ये। और 1 लाख शेयर्स के अगेंस्ट में 1,10,000 शेयर अप्लाई हुए हैं, ठीक है ना। यहाँ पर 50,000 और 60,000, तो 1,10,000 शेयर अप्लाई हुए हैं। तो इन्होंने क्या करना है कि भाई कंपनी विल इशू शेयर्स इन द रेशियो ऑफ 10:11, ठीक है, 10 शेयर इशू कर देंगे हर 11 जो अप्लाई हुए उसके बाद में, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये जिन्होंने 11 शेयर अप्लाई किए थे उनको 10 शेयर मिल जाएंगे। तो इस तरह से बुक बिल्डिंग प्रोसेस चलता है। अब ये जो प्राइस बैंड है, अब प्राइस बैंड में 2 प्राइजेस होते हैं, एक तो फ्लोर प्राइस और एक कैप प्राइस, ठीक है ना। जो लोअर प्राइस है उसको कहते हैं फ्लोर प्राइस, और जो अपर प्राइस होता है उसको कहते हैं कैप प्राइस। और कैप प्राइस जो है इट शुड बी लेस देन 120% ऑफ द फ्लोर प्राइस, मतलब ये जो है जो फ्लोर प्राइस है और उसके बीच में जो गैप है वो 120% से ज्यादा का गैप नहीं हो सकता। अगर फ्लोर प्राइस हमारा 100 है तो कैप प्राइस 120 से ज्यादा नहीं हो सकता। और जो फ्लोर प्राइस है वो भी फेस वैल्यू से ज्यादा ही होगा या बराबर होगा, मतलब क्योंकि अदरवाइज तो शेयर इश्यू ऑफ शेयर से डिस्काउंट हो जाएगा ना, तो एट डिस्काउंट तो हो ही नहीं सकते, ठीक है ना। तो जो फ्लोर प्राइस है वो भी इट विल बी ग्रेटर देन द फेस वैल्यू। अब पब्लिक इशू में क्या है, पब्लिक इशू में एक ये भी रिक्वायरमेंट है, जो भी लिस्टेड कंपनी है प्राइवेट सेक्टर में उसमें 25% कम से कम जो है पब्लिक शेयर होल्डिंग होनी चाहिए, ठीक है। 25 या उससे ज्यादा, 25% से कम जो है होल्डिंग नहीं होनी चाहिए जो भी लिस्टेड कंपनी। अब इसमें जो है अब पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड, ठीक है ना भाई। पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड में हमने क्या पढ़ा था, पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड में हमने ये पढ़ा था शुरू में कि भाई अगर आपके पास पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड है तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप फिक्स्ड प्राइस पे चले जाओ या बुक बिल्डिंग प्रोसेस पे चले जाओ। बुक बिल्डिंग प्रोसेस हमने समझ लिया कि कैसे बुक बिल्डिंग प्रोसेस में बिडिंग होती है, एक फ्लोर प्राइस और एक कैप प्राइस होता है और बिडिंग होती है उस हिसाब से। अब पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड में क्या क्या कंडीशन है आपके पास। पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड में ये नहीं कि पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड कुछ भी हो, ठीक है ना। तो पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड आपका अच्छा होना चाहिए। एक तो नेट टेंजिबल एसेट्स, नेट टेंजिबल एसेट्स आपके 3 करोड़ या उससे ज्यादा होने चाहिए इन प्रीसीडिंग 3 ईयर्स, ठीक है, वो भी 12 महीने के, ठीक है। हर साल जो है वो 12 महीने का होगा। मॉनिटरी एसेट्स जो है वो आपके 50% या उससे कम होने चाहिए। ये कम क्यों होने चाहिए, ये इसलिए होने चाहिए कि भाई इसका मतलब कंपनी ने कुछ कर तो रखा ही नहीं, कंपनी तो भागने के लिए तैयार बैठी है, सारा कुछ उसने लिक्विड में ही रखा हुआ है, ठीक है ना। तो मैक्सिमम 50% की लिमिट है, उससे ज्यादा के आपके मॉनिटरी एसेट्स नहीं होने चाहिए। और जो आपका जो नेट प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट है आफ्टर टैक्स, ये 15 करोड़ या उससे ज्यादा होना चाहिए इन 3 प्रीसीडिंग ईयर्स आउट ऑफ टोटल ऑफ 5 प्रीसीडिंग ईयर्स ऑफ 12 मंथ्स। इसका क्या मतलब है, 15 करोड़ अगर 3 साल में है तो इसका मतलब आपका 15 3 45 हो गया। पर ये नहीं कि इसमें किसी साल में लॉस हो, लॉस भी नहीं होना चाहिए। प्रॉफिट कम ज्यादा हो सकता है लेकिन प्रॉफिट जरूर होना चाहिए हर साल में, ये भी कंडीशन है। फिर जो नेटवर्थ है आपकी, नेटवर्थ जो आपकी 1 करोड़ या उससे ज्यादा होनी चाहिए इन प्रीसीडिंग 3 फुल ईयर्स, ठीक है। और जो प्रपोज्ड इशू है प्लस जो प्रीवियस इशू है इन द सेम फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, ये आपका 5 टाइम्स तक हो सकता है मैक्सिमम। जो भी आपकी नेटवर्थ है, जो लास्ट बैलेंस शीट डेट पे नेटवर्थ थी आपकी, उसका 5 टाइम्स तक मैक्सिमम हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। और अगर आपने कंपनी का नाम चेंज किया है, पहले आपका नाम एवरेस्ट इंडस्ट्रीज था, अब आपने एवरेस्ट केमिकल्स रख दिया, तो जो पिछले साल में कम से कम 50% रेवेन्यू, ये आपकी जो एक्टिविटी है इंडिकेटेड बाय द न्यू नेम वहां से आना चाहिए, ठीक है। अगर मैं नाम में आपने केमिकल जोड़ा है तो केमिकल बिजनेस से उतना रेवेन्यू कम से कम आना चाहिए जो नया नाम है, ठीक है। जो नंबर ऑफ प्रोस्पेक्टिव अलॉटीज है ये जो है ये 1000 या उससे ज्यादा होने चाहिए। और आपको क्रेडिट रेटिंग लेनी है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड एजेंसी, और आपका कोई पेंडिंग डिफॉल्ट वगैरह भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट्स भी जो है आपके, अगर कोई डेट इंस्ट्रूमेंट है तो उसका भी कोई कन्वर्जन पेंडिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये कुछ कंडीशंस।
आगे देखते हैं। अब इसमें एक इलस्ट्रेशन दी है इन्होंने। इलस्ट्रेशन में क्या कहा कि भाई लैंड एंड बिल्डिंग हमारी 2 करोड़ की है, प्लांट एंड मशीनरी जो है वो 1 करोड़ की है, पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क 2 करोड़ के हैं, ट्रेड रिसीवेबल 6 करोड़ के हैं, कैश 1 करोड़ का है। तो टोटल एसेट्स हमारे हो गए 12, 2 1 3 और 2 5 और 6 11 और 1 12। ठीक है। जो टेंजिबल एसेट्स हो गए हमारे वो कितने हो गए 10 करोड़ के। ठीक है। टेंजिबल एसेट्स में इन्होंने क्या निकाल दिया, पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क्स। ठीक है ना। और अब आपका परसेंटेज ऑफ मॉनेटरी एसेट्स। तो अब इस तरह से आप इसमें कैलकुलेशन कर सकते हो कि भाई आपके मॉनेटरी एसेट्स कौन से हैं। ठीक है। मॉनेटरी एसेट्स में आपके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स आ जाएंगे और ट्रेड रिसीवेबल्स आ जाएंगे। मिनिमम सब्सक्रिप्शन आपको कितनी चाहिए, मिनिमम आपको चाहिए 90% या उससे ज्यादा मिनिमम सब्सक्रिप्शन आपकी आनी चाहिए आईसीडीआर में। ठीक है। अदरवाइज आपको वापस करना पड़ेगा पैसा। ठीक है। और इसमें 2 कंडीशंस हैं, अगर आपका इशू अंडर रिटन है या आपका इशू अंडर रिटन नहीं है। ठीक है भाई। देखो ये जितने भी रेगुलेशंस है ना, बहुत लंबे लंबे रेगुलेशंस हैं, 1000 पेज से ज्यादा का मटेरियल है सारे रेगुलेशंस को अगर हम पढ़ें तो। अब उसको जब हम कंसाइज करते हैं तो कई बार उसमें थोड़े बहुत लूज एंड्स भी रह जाते हैं, तो वो आप देख लेना। और कई बार आपको ऐसा भी लग सकता है कि कोई पर्टिकुलर पॉइंट इसमें कवर नहीं भी किया होगा। ठीक है ना। बट फिर भी हमने कोशिश की है उसको जहाँ तक कंप्लीट करने की। अगर ऐसा कुछ होगा तो प्लीज लेट अस नो और उसको इम्प्रूव भी किया जा सकता है। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन आपको कितना लेना है, कम से कम 90% या उससे ज्यादा। अदरवाइज आपको 15 दिन के अंदर पैसा वापस करना पड़ेगा अगर आपका इशू अंडर रिटन नहीं है। और अगर आपका इशू अंडर रिटन है तो आप क्या करोगे कि 60 दिन तो अंडर राइटर को दोगे। ठीक है ना, कि भाई 60 दिन के अंदर अंडर राइटर दे देगा। अगर अंडर राइटर नहीं देगा तो अगले 10 दिन के अंदर आप पैसे वापस दोगे। ठीक है। एक कॉन्सेप्ट आती थी हमारी कि 75% आपको, अगर आपका पास ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है ना, तो दोनों रूट अपनाने पड़ेंगे, बुक बिल्डिंग प्रोसेस भी और ये 75% आपको क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स है। अब ये क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स कौन है, ये है। ठीक है। तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स आर दोज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हु आर जनरली परसीव्ड टू possess expertise and the financial muscle to evaluate and invest in the capital markets. In terms of clause this of DIP guidelines, a qualified institutional buyer shall mean mutual funds, ठीक है ना, तो इसमें फिर वेंचर कैपिटल फंड्स, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स और फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स रजिस्टर्ड विद सेबी। ठीक है। ये फिर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं रजिस्टर्ड विद सेबी, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं, डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशंस, इंश्योरेंस कंपनीज और प्रोविडेंट फंड एंड पेंशन फंड जिनका कॉर्पस जो है 25 करोड़ से ज्यादा हो। तो ये सारे हमारे क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स हैं जहां से आपको 75% लेना पड़ेगा अगर आपका कोई पास ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है तो। ठीक है। वो क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि भाई 25% तक तो जो है 25% तो मिनिमम पब्लिक होल्डिंग रखनी है ना आपको, इसलिए। एग्जाम्पल क्या है, उससे ये इंश्योर हो जाता है कि भाई वो जो है अंडर सब्सक्राइब नहीं होगा। 75 आपने ले लिया, 25 पब्लिक ने ले लिया, होगा पूरा। एग्जाम्पल है कि फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ दिस कंपनी। ठीक है। तो ये एग्जाम्पल आप देख लीजिएगा, खास बात नहीं है इसमें, ये कहानी इसमें पूरी हमने बताई है। फिर प्राइसिंग कैसे होता है आपका। अब प्राइसिंग आपका डिपेंड करेगा कोई 500 रुपए से ज्यादा है आपका इशू प्राइस या 500 रुपए से कम है। ठीक है। तो इसमें क्या है कि अगर ये ज्यादा है तो आपको 1 रुपए से 10 रुपए तक आप रख सकते हो शेयर का प्राइस। ठीक है। और अगर 500 रुपए से कम है तो उस केस में आपको 10 रुपए का शेयर रखना पड़ेगा। ठीक है। अब प्राइस, ये जो इश्यूअर है ये बताएगा, ही विल मैंडेटरीली डिस्क्लोज इन दी फॉलोइंग इन दी ऑफर डॉक्यूमेंट के जो इशू प्राइस पर शेयर है ये इतने टाइम है आपका फेस वैल्यू। कई बार क्या होता है, मान लो आप प्रीमियम पर इशू कर रहे हो, ठीक है ना, तो 10 रुपए का अगर फेस वैल्यू है और जो इशू प्राइस है आपका 50 रुपए, तो वो बता देगा भाई इतने टाइम्स है। ठीक है। एंड सेबी हैज क्लैरिफाइड दैट द रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्सिंग फेस वैल्यू पर शेयर शेल नॉट बी एप्लीकेबल टू दीज कंपनीज। इन्हीं से सवाल आ जाते हैं, मतलब, ठीक है ना, इसी से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनते हैं ना, तो इन्हीं में से आ जाते हैं। तो सेबी हैज क्लैरिफाइड कि भाई जो मिनिमम आपको जो फेस वैल्यू फिक्स करनी है, गवर्नमेंट कंपनी अगर आपकी है, कोई स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है, कोई एसपीवी है जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में है, तो उस केस में आपको ये जो फेस वैल्यू की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है। फिर ये तो हो ही गया।
फिर अनाउंसमेंट, और ये प्राइस जो आपने जो भी अनाउंस किया वो आप बताओगे कब, ठीक है, या तो आप प्रोस्पेक्टस या ऑफर डॉक्यूमेंट में बता दोगे, ठीक है, या बाद में आप बता दोगे, ठीक है। द प्राइस शैल बी फिजिकली अनाउंस इन द फॉलोइंग मैनर। कई बार प्रोस्पेक्टस या ऑफर डॉक्यूमेंट में आप प्राइस नहीं बताते, ठीक है ना, तो उस केस में क्या होगा कि आईपीओ अगर है तो उसमें 5 दिन पहले बताना है आपको, ठीक है ना, बिफोर द ओपनिंग, और अगर एफपीओ है तो कम से कम 1 दिन पहले आपको बताना है। फिर डिफरेंशियल प्राइसिंग भी आप रख सकते हो, प्राइस जो है इशू ऑफ कैपिटल है ना ये, एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, भाई आपने कितने पर इशू करनी है, कितनी कैपिटल लेनी है और उसके डिस्क्लोजर कैसे करना है, यही आईसीडीआर रेगुलेशंस में है। तो 2 तरह के इन्वेस्टर्स हैं, एक तो रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं और ये एंकर इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है ना। अब इस केस में जो है एंकर इन्वेस्टर्स के केस में जो इशू प्राइस है वो रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को जितना दे रहे हो उससे कम नहीं हो सकता, ठीक है। और रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को क्या है, इट कैन बी लोअर देन द प्राइस ऑफर टू अदर्स, ठीक है, लेकिन इसमें भी 10% से ज्यादा दोनों के बीच में डिफरेंस नहीं हो सकता, एंकर इन्वेस्टर्स और जो रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स। जो प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन है, प्रोमोटर कंट्रीब्यूशन आपका कम से कम 20% लाना पड़ेगा, मिनिमम है, मिनिमम 20% कंट्रीब्यूशन इन पोस्ट इशू कैपिटल ऑफ द कंपनी, ठीक है। और लॉक इन पीरियड रहेगा कम से कम 3 साल फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। और अगर मान लो प्रोमोटर जो है जो मिनिमम कंट्रीब्यूशन है, मिनिमम कितना है 20%, अगर 20% से ज्यादा ले आते हैं, ठीक है, भाई 500 करोड़ का इशू था, 500 करोड़ में से प्रोमोटर ले आए 200 करोड़, ठीक है, प्रोमोटर को मतलब 100 करोड़ लाना था 500 में से, तो जो 100 एक्सेस ले आए उनके लिए वो 1 साल में वापस ले जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो मिनिमम है वो 3 साल से पहले वापस नहीं ले जा सकते, ठीक है। और सिक्योरिटीज एक्वायर्ड एट ए लोअर प्राइस बिफोर मेकिंग आईपीओ, आप आईपीओ लाने वाले थे, आईपीओ से पहले आपने कुछ शेयर्स जो है वो कम पर इशू कर लिए, तो उस केस में आपको डिफरेंशियल लाना पड़ेगा, यू विल हैव टू ब्रिंग इन द डिफरेंशियल अमाउंट एट द टाइम ऑफ आईपीओ टुवर्ड्स इट्स कंट्रीब्यूशन इन द कंपनी, ठीक है। ये केस स्टडी है, आप देख लीजिएगा कि प्री इशू कितना था, ठीक है ना। तो अब जैसे ये भाई प्री इशू आपका 5 है, आप लाइव आईपीओ लाइव 95 का, टोटल 100 हो गया, मिनिमम आपका 20%, तो 20 करोड़ हो गया, तो 20% आपको 3 साल तक रखना पड़ेगा, ठीक है। प्री इशू आपका इसमें 500 है, आईपीओ आप लाए 500 का, टोटल हो गया 1000 में प्रमोटर शेयर होल्डिंग मान लो आप 50% ले आए, ठीक है ना, तो 50% में से 20% ही आपका मिनिमम था, बाकी जो 300 है वो आप 1 साल बाद ले जा सकते हो, और जो 20 है वो 3 साल बाद ले जा सकते हो, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा कि अगर मान लो मिनिमम आप नहीं लाए तो उस केस में क्या होगा, ठीक है, तो पोस्ट इश्यू शेयर होल्डिंग बाय प्रमोटर आर लेस देन है, तो उसमें जो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं वो भी 10% तक कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। 20% को मेकअप करने के लिए जो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं दे कैन ऑल्सो कंट्रीब्यूट अप टू 10%। और ये कौन कौन सी सिक्योरिटीज हैं विच आर इनएलिजिबल फॉर मिनिमम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन, मतलब 20% में ये वाली शामिल नहीं होगी, कौन कौन सी, एक तो वो सिक्योरिटीज विच आर प्लेज्ड विद एनी क्रेडिटर, वो 20% में नहीं आएंगी। अगर आपने एक्वायर्ड बाय प्रोमोटर्स है या अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है इन द लास्ट 1 ईयर एट ए प्राइस लेस देन द प्राइस विच इज बीइंग ऑफर्ड टू द पब्लिक, ठीक है। आपने प्रोमोटर्स या जो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं उन्होंने कंट्रीब्यूट किया था पिछले 1 साल के अंदर, और प्राइस कौन सा था, प्राइस वाज लेस देन द प्राइस विच इज बीइंग ऑफर्ड टू द इन द आईपीओ, ठीक है। अगर बोनस इश्यू से आया है तो वो भी 20% में काउंट नहीं होगा, ठीक है। एंड इफ दीज आर एक्वायर्ड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, ठीक है, आपने कोई कंपनी एक्वायर की, कंपनी एक्वायर कर उसके एसेट्स एक्वायर करने के बाद में आपने उनको इशू कर दिए शेयर्स, ठीक है, तो वो कंसिडरेशन अदर देन कैश, वो भी इसमें काउंट नहीं होगा। फिर राइट्स इशू आप कब कब ला सकते हो, नो राइट इशू कैन बी मेड अगर आपका कोई डेट इंस्ट्रूमेंट्स का कन्वर्जन पेंडिंग है, ठीक है, मान लीजिए कोई डिवेंचर्स थे आपके पास, रिडीमेबल डिवेंचर्स थे, उसका कन्वर्जन अभी पेंडिंग है, या फिर ये कि आप उनको भी वही बेनिफिट दे दो कि भाई आप भी जो है राइट इशू में पार्टिसिपेट कर लो, तब तो ठीक है ना।
और लेटर ऑफ ऑफर टू बी डिस्पैच टू ईच एंड एवरी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर विद नेसेसरी डिटेल्स। ठीक है, अगर लेटर ऑफ ऑफर किसी को नहीं मिले तो वो प्लेन पेपर पे भी अप्लाई कर सकता है इन केस ऑफ राइट्स इशू। उसके बाद में राइट्स इशू जो एग्जिस्टिंग लिस्टेड कंपनीज है उस केस में कैसे होगा कि एडवर्टाइजमेंट बाय मोड ऑफ पब्लिक नोटिस शैल हैव टू बी गिवन। ठीक है, वो इंग्लिश पेपर में, हिंदी और रीजनल न्यूज़पेपर में आपको देना पड़ेगा और आपको मिनिमम 15 दिन के लिए ओपन करना पड़ेगा ये इशू और मैक्सिमम 30 दिन के लिए। राइट्स इशू की बात है। बोनस इशू, बोनस इशू कब कब आप ला सकते हो, तो ये सारी कंडीशंस आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो शेयर होल्डर की अप्रूवल चाहिए, स्पेशल रेजोल्यूशन। फिर सिर्फ रेवेन्यू रिजर्व, जो सिक्योरिटीज प्रीमियम, रियलाइज्ड कैपिटल रिजर्व कैन बी यूटिलाइज्ड। इसका मतलब रिवैल्यूएशन रिजर्व आपका नहीं, ये हमने कंपनीज एक्ट में भी पढ़ लिया। ठीक है ना। फिर जो कोई पार्टली पेड अप शेयर्स आपके नहीं होने चाहिए बोनस से पहले, ठीक है ना, उनको फुल्ली पेड अप करना पड़ेगा। आपका कोई कन्वर्जन न्यू पेंडिंग होना चाहिए ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट, नहीं तो आप उनको भी वही चीज दो। ठीक है ना। और आपका कोई डिफॉल्ट भी नहीं होना चाहिए, कोई PFESI का या रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स वगैरह। ठीक है, तो ही आप बोनस इशू ला सकते हो। ये कंडीशंस हमारी कंपनीज एक्ट में भी है। अब बोनस इशू बाय एग्जिस्टिंग लिस्टेड कंपनीज, तो बोनस एक बार आपने बोनस इशू एक बार डिक्लेयर कर दिया तो ये विड्रॉ नहीं हो सकता विदाउट द कंसेंट ऑफ शेयर होल्डर्स। ठीक है, और ये जो डिसीजन है फॉर बोनस इशू इट शैल बी इम्प्लीमेंटेड इन द फॉलोइंग मैनर। क्या होगा कि विद इन 15 डेज फ्रॉम द पासिंग ऑफ द बोर्ड रेजोल्यूशन इफ शेयर होल्डर्स अप्रूवल इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, और विद इन 2 months फ्रॉम द पासिंग ऑफ द बोर्ड रेजोल्यूशन इफ शेयर होल्डर्स अप्रूवल इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो इसका इम्प्लीमेंटेशन इस तरह से होगा कि आपका शेयर होल्डर अप्रूवल अगर नहीं चाहिए तो 15 दिन के अंदर, और अगर शेयर होल्डर अप्रूवल भी चाहिए तो 2 महीने के अंदर। ठीक है, उसके बाद में ये है कि जो सेबी का भी मैंडेट है कि बोनस शेयर शैल बी इशूड विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग ऑफ द बोर्ड रेजोल्यूशन। तो इन्हीं पे क्वेश्चंस बन जाते हैं, इसमें पीरियड पूछ सकता है इस तरह से। फिर इसके बाद एक आता है प्रेफरेंशियल इशू। ठीक है ना, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। प्रेफरेंशियल का क्या मतलब है? अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटीज टू सर्टेन कैटेगरीज ऑफ इन्वेस्टर्स ऑन प्रेफरेंशियल बेसिस। क्या कंडीशंस हैं टू बी कंप्लाइड विद बाय लिस्टेड कंपनीज? एक तो ये स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी है आपको, सिक्योरिटीज जो है वो डीमैट मोड में होनी चाहिए, और फिर आपको पैन भी लेना पड़ेगा जो भी प्रोस्पेक्टिव अलॉटेज है। ठीक है, ये प्रेफरेंशियल के लिए कुछ कंडीशंस है। प्राइसिंग कैसे होगा? प्राइसिंग अब क्योंकि आपकी लिस्टेड कंपनी है, ठीक है ना, तो कंपनी इज लिस्टेड फॉर मोर देन 2 weeks बट लेस देन 26 weeks। भाई आपकी कंपनी को लिस्ट हुए पीरियड कितना हुआ इसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, प्राइसिंग शैल नॉट बी लेस देन हायर ऑफ द फॉलोइंग। पहला, एवरेज ऑफ वीकली हाइज एंड लोज ऑफ द एक्चुअल पीरियड ऑफ लिस्टिंग। ठीक है ना, मान लो 10 वीक हुए लिस्ट हुए, ठीक है ना, तो एवरेज ले लेंगे वीकली हाइज एंड लोज का, और एवरेज ऑफ वीकली हाइज एंड लोज प्राइसेस ऑफ द प्रीसीडिंग 2 weeks। तो प्राइसिंग शैल नॉट बी लेस देन हायर ऑफ द फॉलोइंग। इन दोनों में से जो भी हायर होगा उससे कम प्राइस आपका नहीं हो सकता इन केस ऑफ प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। ये कब कंडीशन है? अगर आपका लिस्टेड हुआ है मोर देन 2 weeks बट लेस देन 26 weeks। अगर ज्यादा हो गए, ठीक है, तो कंपनीज एक्चुअली कंप्लीट लिस्टिंग पीरियड फॉर 26 weeks। तो उस केस में क्या होगा भाई? आपका यहाँ तो ये है कि अभी कंपनी नई नई आई थी, ठीक है ना, आपने प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट कर दिया, यहाँ पर प्राइस एक किस्म से स्टेबलाइज नहीं हुआ था। ठीक है, अब कंपनी ने एक्चुअली 26 weeks कंप्लीट कर लिए, तो आपका प्राइस पर शेयर रिकम्प्यूट होगा। ठीक है, और जो डिफरेंस होगा वो लाना पड़ेगा भाई कंसर्न्ड शेयर होल्डर। ठीक है, एंड इफ द डिफरेंस इज ऑन द लोअर साइड, फिर कंपनी वापस नहीं करेगी शेयर होल्डर। ठीक है, इसका मतलब ये है कि प्राइस मैनिपुलेशन ना करे कंपनी। और कंपनी लिस्टेड है फॉर मोर देन 26 weeks, उस केस में क्या होगा? उस केस में होगा कि एवरेज ऑफ द वीकली हाइज एंड लोज ऑफ द प्रीसीडिंग 26 weeks, एवरेज ऑफ द वीकली हाइज एंड लोज प्राइस ऑफ द प्रीसीडिंग 2 weeks। ठीक है, तो इस केस में इन दोनों में से हायर ले लेंगे और उससे कम प्राइस नहीं होगा। ठीक है, फिर लॉक इन पीरियड है प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में भी। इफ शेयर्स आर अलॉटेड ऑन प्रेफरेंशियल बेसिस, बिकॉज मान लो CDR की वजह से आपने प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट की, तो उस केस में लॉक इन पीरियड है 1 year का। ठीक है, इफ शेयर्स आर पार्टली पेड अप एंड आर अलॉटेड टू अदर देन प्रोमोटर्स, ठीक है,
उस केस में भी 1 ईयर है, 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट एंड शैल एक्सपायर ऑन द डे एंडिंग ऑन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑन विच दिस वर इशूड। और अगर प्रोमोटर्स को अलॉटेड है तो इसमें 3 साल है फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। ये प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, जो नॉर्मल थी उसमें भी यही है, ठीक है ना। प्रोमोटर्स के लिए 3 साल, 20% 3 साल तक रखना पड़ता है, इसमें कोई खास बात नहीं है इसमें। ये फिर ये है कि इशू ऑफ इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स। इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स में क्या है कि बाहर की कंपनी आपकी इंडिया में आके इन्वेस्ट कर रही है। कुछ क्या कंडीशंस हैं? एक तो इशू साइज जो है आपका वो 50 करोड़ है, उससे ज्यादा होना चाहिए। फिर ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए ऑफ हैविंग डिविजिबल प्रॉफिट्स इन एटलीस्ट 3 प्रीसीडिंग ईयर्स आउट ऑफ 5 प्रीसीडिंग ईयर्स। और मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है इट शुड बी more than or equal to $100 million in its home country. Net worth it should be more than $15 million in its home country. और फिर उनको अपने कंट्री में कोई प्रोहिबिशन नहीं होनी चाहिए टू एक्सेस कैपिटल मार्केट। ये कुछ इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स के लिए कंडीशंस हैं। फिर इसके बाद क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट और इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट प्रोग्राम आते हैं। ये क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट में क्या है, इसमें कुछ इशू साइज है कि भाई इशू साइज आपका जो है 250 करोड़ से कम अगर होगा तो कम से कम उसमें 2 क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स आएंगे, अलॉटीज होंगे, ठीक है। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स कौन से थे वो हमने पहले ही देख लिया। बेसिकली उसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं या कुछ फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस वगैरह हैं बेसिकली, ठीक है। और इशू साइज अगर आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू 250 करोड़ है तो उसमें कम से कम 5 QIB अलॉटेज। तो यही क्वेश्चन पूछ सकता है कि 2 होंगे या 5 होंगे या इस तरह से कुछ साइज वगैरह दे सके, यही चीजें हमें याद में रखने वाली है। और इस केस में आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी है और अप्रूवल चाहिए आपको स्टॉक एक्सचेंज से, ठीक है। और अगर इंस्टीट्यूशन सेम ग्रुप को बिलोंग करते हैं तो वो एक ही अलॉटी माने जाएंगे, ठीक है। और इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट प्रोग्राम में क्या है, इसमें मिनिमम 10 अलॉटीज होने चाहिए और आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी है। अब ये पूरी डिटेल क्या है वो सारी हमारी रेगुलेशंस के अंदर दे रखी है कि कौन सा। फिर इसके बाद आता है जी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट एंड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट प्रोग्राम। पहली बात तो ये है कि पार्टली पेड अप शेयर्स इसमें इशू नहीं हो सकते, ठीक है। और अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाएगी तो अलॉटमेंट ऑफ नॉट मोर देन 10% ऑफ द ऑफर साइज शैल बी मेड बाय द सेलर, ठीक है ना। तो मतलब एक को 10% से ज्यादा नहीं दिया जाएगा। और प्राइसिंग किस बेस पे बेस होगा, इट शैल बी बेस्ड ऑन द एवरेज ऑफ द वीकली हाइज एंड लोज प्राइसेस ऑफ द प्रीसीडिंग 2 वीक्स। और लॉक इन पीरियड इसमें 1 साल का है। जैसे यहां बताया कि भाई अगर सेम ग्रुप के हैं, मान लो एक्सिस म्यूचुअल फंड है और एक्सिस कैपिटल है, तो इसको एक ही क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन बाहर माना जाएगा, क्योंकि इसमें 2 हैं, ठीक है ना। जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट है और इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट प्रोग्राम में जो QIP में क्या होगा कि जो कोई भी सिंगल अलॉटमेंट जो है वो 50% से एक्सीड नहीं करे, क्योंकि मिनिमम 2 चाहिए आपको, ठीक है ना। और जो इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट प्रोग्राम है उसमें कितने चाहिए, 10 चाहिए मैक्सिमम, मिनिमम, है ना। तो नो सिंगल अलॉटमेंट शैल एक्सीड 25% ऑफ द ऑफर, ये है। फिर डिफरेंस क्या है IPO, FPO, इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट प्रोग्राम और क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट में। एलिजिबल कंपनीज कौन सी हैं? पब्लिक ऑफर के लिए IPO, FPO सारी लिस्टेड कंपनी दे सकती हैं। जो इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट प्रोग्राम है उसके इसमें क्या है, लिस्टेड कंपनीज करंटली नॉट इन कंप्लायंस विद मिनिमम पब्लिक होल्डिंग रिक्वायरमेंट्स। और प्राइवेट प्लेसमेंट में क्या है, लिस्टेड कंपनीज इन कंप्लायंस विद मिनिमम पब्लिक होल्डिंग रिक्वायरमेंट। ये क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट में जा सकती हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट की कर सकती हैं, ठीक है। और इनको क्या करना पड़ेगा, जो करंटली कंप्लायंट नहीं है इनको पब्लिक ऑफर में जाना पड़ेगा, ठीक है। एलिजिबल इन्वेस्टर्स कौन कौन से हैं? IPO, FPO के लिए रिटेल हैं, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स हैं और नॉन इंस्टीट्यूशनल हैं। और इस केस में IPP में जो इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट प्रोग्राम है इसमें सिर्फ क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स ही आ सकते हैं। और ये जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल जो प्लेसमेंट है इस केस में प्राइवेट प्लेसमेंट में सिर्फ क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर से आएंगे, ठीक है। फिर एक इसमें आता है इशू ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज बाय स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। अगर SME को कुछ इशू करना है स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज तो उसमें क्या है, एप्लीकेबिलिटी फॉर इशूअर है। एक तो ये कि पोस्ट इशू फेस वैल्यू ऑफ कैपिटल, अगर आपके 10 करोड़ से कम है
तो उस केस में क्या होगा, इश्यूअर शैल इशू इट्स स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। और अगर 10 करोड़ से ज़्यादा है और 25 करोड़ से कम है पोस्ट इशू फेस वैल्यू ऑफ कैपिटल, तो उस केस में क्या होगा, इश्यूअर मे ऑल्सो इशू, ठीक है। यहाँ पर वर्ड शैल लिखा है, यहाँ पर लिखा है मे। फिर जो एसएमईज है, एसएमईज में क्या क्या कंडीशंस दे रखी है। अगर आपने कोई स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज इशू करनी है एसएमई में, तो एप्लीकेशन वैल्यू आपकी 1 लाख रुपए पर एप्लीकेशन या उससे ज़्यादा होगी, ठीक है। अलॉटीज आपको 50 से ज़्यादा रखने पड़ेंगे, ठीक है। फिर आपको अंडरराइटर अपॉइंट करने हैं और अदर नॉमिनेटेड इन्वेस्टर्स करने हैं थ्रू मर्चेंट बैंकर। इशू जो है 100% अंडर रिटर्न होना चाहिए, और मर्चेंट बैंकर जो है उनको कम से कम जो है 15% से ज़्यादा का आपको अंडरराइट करना पड़ेगा इशू, ठीक है। और अगर दूसरे अंडरराइटर्स फेल हो जाते हैं, उस केस में क्या होगा, मर्चेंट बैंकर ही विल फुलफिल द अंडरराइटिंग ऑब्लिगेशंस। अब अगर आप यहां पर आ गए, ठीक है ना, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज में, और आपको मेन बोर्ड पर माइग्रेशन करना है, तो उस केस में क्या होगा, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करोगे आप। मर्चेंट बैंकर्स, जो मेजर मर्चेंट बैंकिंग एक्टिविटीज हैं विच द बैंक ऑफर्स टू इट्स क्लाइंट्स, क्या है, एक तो इशू मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक इशूज, आईपीओज, एपीओज, राइट्स इशू, एस्क्रो कलेक्टिंग बैंक होगा, पेमेंट ऑफ डिविडेंड वारंट्स, इंटरेस्ट वारंट्स, ये इसके मेन काम है, ठीक है। डिवेंचर ट्रस्टी और अंडरराइटिंग। फिर है लिस्टिंग बाय एसएमईज ऑन इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म विदाउट आईपीओ। ये जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, इट इज अ न्यू विंडो ऑन स्टॉक एक्सचेंजेस, जहां पर ई कॉमर्स, डाटा एनालिटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी या दूसरे स्टार्टअप ये लिस्ट हो सकते हैं और दे कैन ट्रेड देयर शेयर्स। इसमें 2 मोड है, एक तो नॉन पब्लिक इशू मोड है और एक है पब्लिक इशू मोड, ठीक है। ये जो नॉन पब्लिक इशू मोड है, इसमें सिर्फ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ही आ सकते हैं, और जो पब्लिक इशू मोड है, इसमें क्या है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट आपकी 75% होगी, और जो नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट है ये होगी 25% की, ठीक है। एक इसमें फास्ट ट्रैक इशू भी आता है। फास्ट ट्रैक इशू में क्या है, फास्ट ट्रैक इशू में ये है कि जो एग्जिस्टिंग इक्विटी लिस्टेड और जो लिस्टिंग एग्रीमेंट है, इन्होंने कंप्लाई किया है, तो अगर आपकी कंपनी बहुत अच्छी है, तो उस केस में क्या होगा कि आप फास्ट ट्रैक मोड में भी जा सकते हो, ठीक है। और इसके लिए क्या क्या कंडीशंस हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो एक तो ये है कि आपकी एग्जिस्टिंग इक्विटी लिस्टेड कंपनी होनी चाहिए, और लिस्टिंग एग्रीमेंट, क्योंकि जो भी लिस्टेड कंपनी होती है उसका स्टॉक एक्सचेंज के साथ एक लिस्टिंग एग्रीमेंट होता है, तो उस लिस्टिंग एग्रीमेंट में सारी कंप्लायंस पूरी होनी चाहिए आपकी, कम से कम 3 साल तक। आपका जो एवरेज मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 1000 करोड़ से ज़्यादा का होना चाहिए, इसका मतलब बड़ी कंपनी है, ठीक है। आपके पास जो हर एक को क्या होता है कि ग्रीवांस रजिस्टर रखना पड़ता है कंपनी में, तो उसका रेजोल्यूशन आपका 95, जो भी आपको इन्वेस्टर कंप्लेंट मिली उसका 95% आपका रेजोल्यूशन होना चाहिए, इसका मतलब आप बहुत ही बढ़िया कंपनी हो। फाइनेंशियल इम्पैक्ट जो है, जो ऑडिटर्स क्वालिफिकेशन इन ईच पास्ट 3 ईयर्स, ये 5% ऑफ नेट प्रॉफिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इससे कम होना चाहिए। आपको सेबी ने कोई शोकॉज नोटिस नहीं इशू किया हो, अगर इशू किया है तो वो पेंडिंग नहीं होना चाहिए। और जो मिनिमम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन है, ये आपको डीमैट मोड में लाना पड़ेगा। तो अगर ये कंडीशंस आप फुलफिल करते हो तो आप फास्ट ट्रैक इशू भी ला सकते हो। फिर एक ग्रीन शू ऑप्शन अवेलेबल है। ग्रीन शू क्या है, ग्रीन शू में क्या है, इट इज अ ओवर अलॉटमेंट ऑप्शन, ठीक है। तो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एन आईपीओ, इट इज अ प्रोविजन इन एन अंडरराइटिंग एग्रीमेंट that grants the underwriter the right to sell investors more shares than originally planned by the issuer if the demand for a security issue proves higher than expected, ठीक है। भाई आपका जो है डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो उस केस में क्या करता है, जो अंडरराइटर है, भाई अंडरराइटर ने अंडरराइट कर रखे हैं, वो कहता है मेरे वाले में से ले लो आप शेयर्स, ठीक है। इसका बेसिस क्या है, जो ग्रीन शू ऑप्शन है, तो ओवर अलॉटमेंट ऑप्शंस दे आर नोन एज ग्रीन शू ऑप्शंस, बिकॉज इसमें क्या हुआ है, ग्रीन शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, ठीक है ना, दिस वाज द फर्स्ट टू इशू दिस टाइप ऑफ ऑप्शन। तो इसमें क्या होता है, एडिशनल प्राइस स्टेबिलिटी होती है टू ए सिक्योरिटी इशू, बिकॉज द अंडरराइटर कैन इंक्रीज सप्लाई एंड स्मूथ आउट द प्राइस फ्लक्चुएशंस, ठीक है।
भाई लोग ज्यादा लेना चाहते हैं, वो क्या करेंगे, मार्केट से खरीदेंगे, मार्केट से प्राइस बढ़ेगा, तो वो कहता है मार्केट से क्या तुम मेरे से ले लो। इट इज द ओनली टाइप ऑफ प्राइस स्टेबलाइजेशन मेजर परमिटेड बाय सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन। ये जो मेन बात इसमें क्या है, जो ग्रीन शू ऑप्शन है, इट इज एन ओवर अलॉटमेंट ऑप्शन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एन आईपीओ। और इस केस में नॉर्मली दे टिपिकली अलाउ अंडरराइटर्स टू सेल अप टू 15% मोर शेयर्स देन द ओरिजिनल इशू। करना क्या क्या है आपको, एक तो जनरल मीटिंग में अप्रूवल चाहिए, फिर अपॉइंटमेंट ऑफ मर्चेंट बैंकर एज ए स्टेबलाइजिंग एजेंट टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर सच मैकेनिज्म, ये जो प्राइस स्टेबलाइजेशन मैकेनिज्म के लिए। और एग्रीमेंट करना पड़ेगा आपको स्टेबलाइजिंग एजेंट के साथ अबाउट द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज ओनली इन डीमैट मोड दैट मे बी बोरोड बाय हिम फॉर द पर्पज ऑफ अलॉटमेंट और एलोकेशन। फिर प्रेस्क्राइब डिस्क्लोजर करना पड़ेगा आपको ऑफर डॉक्यूमेंट में। एंड स्टेबलाइजेशन प्रोसेस इट शैल बी अवेलेबल फॉर ए पीरियड ऑफ अप टू 30 days, और स्टेबलाइजिंग एजेंट विल सबमिट ए डेली रिपोर्ट टू स्टॉक एक्सचेंज ड्यूरिंग द स्टेबलाइजेशन पीरियड एंड ए फाइनल रिपोर्ट टू सेबी इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट। फिर एक सेफ्टी नेट अरेंजमेंट। सेफ्टी नेट अरेंजमेंट में क्या है कि भाई उसके साथ धोखा ना हो जाए इन्वेस्टर के साथ, तो उनको ये कह देते हैं भाई ऐसे है कि हम आपसे खरीद लेंगे अगर इससे कम चला गया प्राइस तो सेफ्टी नेट अरेंजमेंट मीन्स एन अरेंजमेंट प्रोवाइडेड बाय द इश्यूअर अंडर विच ए पर्सन ऑफर्स टू परचेज स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज फ्रॉम द ओरिजिनल रेजिडेंट रिटेल इंडिविजुअल अलॉटीज एट द इशू प्राइस। ठीक है भाई, आपने इशू किया था 500 में, उसका प्राइस चला गया 20 रुपए, ठीक है ना, तो कहता है जी इशू प्राइस पे हम आपसे खरीद लेंगे, तो ये सेफ्टी नेट है। तो इसमें कितनी हो सकती है, मैक्सिमम 1000 सिक्योरिटीज पर ओरिजिनल रेजिडेंट रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर। ठीक है, तो इस पर सवाल पूछ सकता है। इन एन आईपीओ is to be covered under the arrangement and the buyback will be at the issue price and is to be exercised within a period of 6 months from the date of dispatch of securities। तो 6 महीने का उसको देते हैं कि भाई जितने प्राइस पे हमने इशू किया था उतने पे अगर उससे कम चला जाता तो हम खरीद लेंगे। ये सेफ्टी नेट अरेंजमेंट है, मैक्सिमम 1000 पर इन्वेस्टर। फिर जो वारंट्स इशू क्या है, वारंट्स में क्या है, वारंट इज अ डेरिवेटिव सिक्योरिटी दैट गिव्स द होल्डर द राइट टू परचेज सिक्योरिटीज usually equity from the issuer at a specific price and within a certain time frame। ठीक है, अब ये जो वारंट्स है दे में भी इशूड along with public issue या rights issue। तो उस केस में क्या होता है कि the tenure of such warrant shall not exceed 18 months from the date of allotment in the public or rights issue। और एक सिक्योरिटी के साथ में एक ही वारंट आप लगा सकते हो। ठीक है, और प्राइस कन्वर्जन फार्मूला क्या रहेगा, द प्राइस और कन्वर्जन फार्मूला ऑफ द वारंट शैल बी डिटरमिन्ड अपफ्रंट, दैट इज इमीडिएटली एंड एट लीस्ट 25% ऑफ द कंसिडरेशन अमाउंट शैल आल्सो बी रिसीव्ड अपफ्रंट। और अगर वारंट होल्डर उस ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करता, ठीक है ना, टू टेक इक्विटी शेयर्स अगेंस्ट द वारंट्स हेल्ड बाय हिम, द कंसिडरेशन पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ सच वारंट शैल बी फॉरफिटेड। ठीक है, क्योंकि 25% जो पहले ले लिया वो फॉरफिट हो जाएगा। इसमें कुछ अमेंडमेंट आई है। इसमें क्या हुआ कि एक एग्जिट अपॉर्चुनिटी दी है। तो सेबी आईसीडीआर में एक सेकंड अमेंडमेंट रेगुलेशंस आए 2016 में। इसमें क्या है, कंडीशंस एंड मैनर ऑफ प्रोवाइडिंग एग्जिट अपॉर्चुनिटी टू द डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स। इसको देख लेते हैं। ये ट्रिगर पॉइंट इसका क्या है, ट्रिगर पॉइंट इसमें ये है कि अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट्स में अमेंडमेंट कर दिया या आपने कॉन्ट्रैक्ट में कोई वेरिएशन कर दिया जो आपने प्रोस्पेक्टस में लिखा था, ठीक है, और जो स्पेशल रेजोल्यूशन से अप्रूव्ड था। भाई आप काम एक पर्टिकुलर करना चाहते थे, जब आप दूसरा ही काम करने लगे कंपनी में, ठीक है, तो कुछ लोग कह सकते हैं भाई हमारा पैसा वापस दे दो। ठीक है, पब्लिक इशू आपने इस डेट्स के बाद किया था, 1/4/2014 के बाद। नंबर ऑफ डिसेंटिंग शेयर होल्डर कम से कम 10% होने चाहिए। ठीक है, और अमाउंट ऑफ आईपीओ यूज जो है आपका, अगर 75% से कम आपने उसमें यूज किया है, मतलब ये कि आपके स्टेटेड ऑब्जेक्ट्स होते हैं मेमोरेंडम में भी। ठीक है, आपने लिखा होता भाई क्या काम करना है। अब होता क्या है कि मान लो काम तो आपका कुछ और है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, आप गाड़ियां ही खरीदना शुरू कर दिए उसमें, ठीक है ना, और 75% भी आपने उस काम में यूटिलाइज नहीं किया। ठीक है, तो उस केस में 10% से ज्यादा कह सकते हैं भाई हमारा पैसा वापस दे दो। और ये जो टेंडरिंग पीरियड है, इट शैल स्टार्ट नॉट लेस देन 7 वर्किंग डेज फ्रॉम द पासिंग ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन एंड शैल रिमेन ओपन फॉर 10 वर्किंग डेज।
तो एग्जिट प्राइस इसमें क्या होगा? एग्जिट प्राइस इज हाईएस्ट ऑफ द फॉलोइंग, जो वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस होगा पास्ट 52 वीक्स का, या वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस ऑफ पास्ट 26 वीक्स, या वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस ऑफ पास्ट 60 ट्रेडिंग डेज इफ शेयर्स आर फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड, ठीक है ना। और वैल्यूएशन पर अगर आपके शेयर्स फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड नहीं है तो उस केस में वैल्यूएशन होगा। इसके बाद में आते हैं जी आपके पास सेबी डील, ये आईसीडीआर के कुछ हमारे मेन पॉइंट्स इसमें देख लिए, ठीक है। आईसीडीआर रेगुलेशन तो बहुत लंबे हैं, तो उसमें यह है कि अगर आप पूरा और आपको इंटरेस्ट है तो आप और इसको डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। अब हम देखते हैं सेबी डी लिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर। आज हम इसको खत्म करना चाहते हैं, कोशिश तो हमारी ये है कि वे इसको खत्म कर दें। तो डी लिस्टिंग में क्या है? डी लिस्टिंग में क्या है कि एक तो है कंपलसरी डी लिस्टिंग आपका, ठीक है भाई। एक तो ये हो सकता है कि आपका स्टॉक एक्सचेंज में आप लिस्टेड हो, ठीक है ना, तो स्टॉक एक्सचेंज ही आपको डीलिस्ट कर दे। एक ये होता है कि आप खुद डीलिस्ट होना चाहते हैं। एक ये कि आप सारे स्टॉक एक्सचेंजेस से डीलिस्ट होना चाहते हैं या एक पर्टिकुलर स्टॉक एक्सचेंज से डीलिस्ट होना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप सारे से डीलिस्ट होना चाहोगे तो आपको शेयर होल्डर को एक अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी कि भैया हम डीलिस्ट होना चाहते हैं, हम आपसे शेयर खरीद लेंगे, ठीक है ना। तो ये बेसिक इसमें बातें हैं। और जो पब्लिक शेयर होल्डर कौन है? पब्लिक शेयर होल्डर मीन द होल्डर ऑफ इक्विटी शेयर अदर देन द प्रमोटर्स या होल्डर्स ऑफ डिपॉजिट रिसीट्स इशूड ओवरसीज अगेंस्ट इक्विटी शेयर्स हेल्ड विद ए कस्टोडियन एंड सच कंसोर्टियम। और वॉलंटरी डीलिस्टिंग क्या है? वॉलंटरी डीलिस्टिंग है कि आपने खुद डीलिस्ट कराया। कंपलसरी मतलब स्टॉक एक्सचेंज ने कर दिया, ठीक है। और ये जो प्रोविजन डीलिस्टिंग वाले प्रोविजंस किस पर एप्लीकेबल नहीं है? ये उन पर है सिक्योरिटीज लिस्टेड विदाउट मेकिंग ए पब्लिक इशू ऑन द इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है ना। तो उस पर ये डीलिस्टिंग ऑब्लिगेशंस नहीं लगते। और डीलिस्टिंग इज नॉट परमिसिबल इन द फॉलोइंग केस। पहला, एक तो बाईबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स बाय द कंपनी, इस केस में नहीं है। और प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट मेड बाय द कंपनी, तो उसमें डीलिस्टिंग पॉसिबल आपकी नहीं है, इट इज नॉट परमिसिबल। 3 साल तक आप ये नहीं कर सकते, ठीक है ना। आपने इधर बाईबैक किया था या प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट किया था तो आपके पास 3 साल तक अनलेस पीरियड ऑफ 3 years has elapsed since the listing of that class of equity shares, तब तक आप डिलिस्ट नहीं करा सकते, ठीक है। एंड नो प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप शैल प्रपोज डीलिस्टिंग of a company if any entity belonging to the promoter or promoter group has sold equity shares of the company during a period of 6 months, ठीक है। अब आप यहाँ डीलिस्टिंग का प्रपोजल लेके आ रहे हो बोर्ड मीटिंग में, ठीक है। आपने अपना ही स्टेक बेच दिया, ठीक है, 6 महीने पहले, ड्यूरिंग पीरियड ऑफ 6 months प्रायर टू द डेट ऑफ द बोर्ड मीटिंग, ठीक है ना। तो उस केस में आपको प्रमोटर जो है वो डीलिस्टिंग प्रपोज नहीं कर सकता, ठीक। क्या कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज की डीलिस्टिंग परमिटेड है? नहीं। नाइदर द कंपनी शुड अप्लाई नॉर द स्टॉक एक्सचेंज शुड परमिट, ठीक है। और इसमें ये है कि सारा चीजें हैं, मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ। सब्सटेंशियल एक्विजिशन से पहले है ये डीलिस्टिंग का ना, लास्ट में हमने दे रखा है मेरे ख्याल, इसमें चार्ट होना चाहिए। हमने एक चार्ट बना रखा था, उससे समझ में आ जाएगा। ये है जी, हाँ। तो डीलिस्टिंग आपके दो तरह से हो सकती है, एक होती है वॉलंटरी और एक होती है आपकी कंपलसरी। वॉलंटरी में क्या है? एक तो ये कि आपको एग्जिट अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी और एक में आप एग्जिट अपॉर्चुनिटी नहीं देनी जरूरी। क्यों नहीं देनी? विदाउट एग्जिट अपॉर्चुनिटी किस केस में होगी? मान लो आपका 3 स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड है, आप कहते हो जी हम एक में ही रखेंगे उसको, ठीक है, तो उसके बाद शेयर होल्डर के पास ऑप्शन तो रहेगी ना बेचने की। तो इस केस में क्या होगा? कंपनी स्टिल लिस्टेड विद एनी डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज। आप 4 में लिस्टेड थे, आपने 3 से डिलिस्ट करा लिया, एक में हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप सारे से ही डिलिस्ट कराओगे तो फिर इधर जाना पड़ेगा विद एग्जिट अपॉर्चुनिटी। तो विदाउट एग्जिट अपॉर्चुनिटी में आपको क्या क्या करना है? बोर्ड मीटिंग लेनी है और अप्रूवल करना है ऑफ डीलिस्टिंग बाय बोर्ड रेजोल्यूशन, ठीक है। एक पब्लिक अनाउंसमेंट कर देनी है प्रपोज डीलिस्टिंग, ठीक है, इंग्लिश या हिंदी और रीजनल या वर्नाकुलर न्यूज़पेपर में, जहां पर भी जो स्टॉक एक्सचेंज कंसर्न स्टॉक एक्सचेंज एग्जिस्ट करता है। कंपनी आप एप्लीकेशन दे देंगे स्टॉक एक्सचेंज को, और स्टॉक एक्सचेंज जो है वो जो है विल डिस्पोज ऑफ द एप्लीकेशन विद इन 30 days। स्टॉक एक्सचेंज के पास 30 दिन का टाइम है। अब या तो परमिशन मिल जाएगी, परमिशन मिल गई तो खत्म बात, कोई दिक्कत नहीं। और अगर परमिशन नहीं मिली तो उस केस में क्या है कि ये प्रोसेस यहीं रुक जाएगा। और अगर ग्रांट हो गई तो ये एजीएम, जो फर्स्ट एजीएम होगी उसके बीच, उसके में ये जो डिस्क्लोजर दिया जाएगा कि भाई हमारी कंपनी यहाँ से डीलिस्ट हो गई है।
बट इसमें क्या है कि अभी भी एक आध में बची हुई है, कम से कम एक में बची हुई है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मान लो 4 में लिस्टिंग हो, चारों से डिलिस्ट कराना चाहते हो, ठीक है। तो इसमें फिर आपको एग्जिट अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी। तो बोर्ड अप्रूवल होगा आपका बोर्ड मीटिंग में, और उस केस में क्या होगा, आप टाइम और डेट डिसाइड करोगे कि शेयर होल्डर मीटिंग बुलानी है। बोर्ड मीटिंग के बाद यहाँ पर शेयर होल्डर मीटिंग भी बुलानी जरूरी है, ठीक है। पहले वाले में क्या है, पहले वाले में आपने यहाँ शेयर होल्डर मीटिंग बुलानी जरूरी नहीं है, ठीक है ना। और फिर उसके बाद में आपने क्या करना है, आपने सीएस को ऑथराइज करना है कि एक ड्राफ्ट बनाओ और ये शेयर होल्डर्स को भेजो कि जी हम जो है आपको एग्जिट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। आपको फिर शेयर होल्डर की अप्रूवल लेनी पड़ेगी बाई स्पेशल रेजोल्यूशन। फिर आपको कंसर्न स्टॉक एक्सचेंज को पहले इन प्रिंसिपल अप्रूवल लेनी पड़ेगी, क्योंकि भाई सारे लोग अपने शेयर वापस करेंगे ना कंपनी को, तो आप इन प्रिंसिपल अप्रूवल लोगे प्रपोज डिलिस्टिंग की, और फिर पब्लिक अनाउंसमेंट करोगे पेपर्स में, और फिर अब जो है एक ऑफर लेटर भेजोगे शेयर होल्डर्स को। उस ऑफर लेटर में क्या क्या होगा, ठीक है। ये जो विद एग्जिट अपॉर्चुनिटी है, एक तो ये कि जो ऑफर है ये कम से कम 5 दिन तक मिनिमम ओपन रखना पड़ेगा, और जो क्लोजिंग ऑफ ऑफर है इट शुड बी मिनिमम आफ्टर 3 days एंड मैक्सिमम आफ्टर 5 days, ठीक है। फिर वेरिफिकेशन ऑफ शेयर्स और पेमेंट के लिए, इसके लिए 10 दिन का टाइम है मैक्सिमम। और फिर आपको कंसर्न स्टॉक एक्सचेंज को अप्लाई करना है फॉर डीलिस्टिंग। ये आपको इट हैज टू बी मेड विद इन 1 year ऑफ ऑब्टेनिंग शेयर होल्डर्स अप्रूवल। अब ये पूरी वर्किंग है कि किस किस तरह से आपको करना है विद एग्जिट अपॉर्चुनिटी में। इसमें जो मिनिमम शेयर्स आपको एक्वायर करने हैं इन द प्रोसेस ऑफ वॉलंटरी डीलिस्टिंग, ये क्या होगा, ये होगा मिनिमम ऑफ दिस टू 90% ऑफ ऑफर साइज, या एग्रीगेट परसेंटेज ऑफ प्री ऑफर प्रमोटर होल्डिंग प्लस 50% ऑफ ऑफर साइज विच एवर इज हायर। तो ये आपको जो है मिनिमम नंबर आपको लेने पड़ेंगे कंपनी को वापस, ठीक है। मतलब प्रमोटर होल्डिंग आप अलग काउंट करोगे और पब्लिक होल्डिंग अलग। तो कैलकुलेशन कैसे होती है इसमें, प्रमोटर होल्डिंग मान लो किसी कंपनी में 20% है और पब्लिक होल्डिंग है आपकी 80%, ठीक है। तो 90% ऑफ ऑफर साइज कितना हो गया, 80 का 90% मतलब 72, ठीक है। तो आपको इसमें कितना करना है, 20 प्लस 50% ऑफ पब्लिक होल्डिंग, ये वाला, ठीक है ना, या फिर 90% ऑफ ऑफर साइज 72, विच एवर इज हायर। इन दोनों में से जो भी हायर होगा, तो हायर कौन सा, 72,000 है। इस तरह से केस 2 में क्या है, अगर प्रोमोटर होल्डिंग ज्यादा है, भाई दो ही चीज होगी, या तो प्रोमोटर होल्डिंग ज्यादा होगी या पब्लिक होल्डिंग ज्यादा होगी। दूसरे केस में क्या है, प्रोमोटर होल्डिंग ज्यादा है, ठीक है ना, पब्लिक होल्डिंग आपकी कम है, तो 90% ऑफ ऑफर साइज आपका 27,000 हो गया, 90% ऑफ 30,000, ठीक है ना। और यहाँ पर आपका जो प्रोमोटर कंट्रीब्यूशन है प्लस 50% ऑफ 30,000, तो 85 यहाँ कैलकुलेशन आ रही है। तो इन दोनों में से 85 ज्यादा, तो 85 आपको लेना पड़ेगा। ये है, ये इतने शेयर्स आपको एक्वायर करने हैं डीलिस्टिंग में मिनिमम। ये तो हो गया वॉलंटरी डीलिस्टिंग, ठीक है ना। दो सिचुएशन हो गई, एक तो ये सारे स्टॉक एक्सचेंजेस से ये आप निकलना चाहते हो, तो उसमें तो आप एग्जिट अपॉर्चुनिटी दे दोगे इस हिसाब से, ठीक है। और अगर एक आध स्टॉक एक्सचेंज में तो बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्या है, ये कंपलसरी डीलिस्टिंग है बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज भी कर सकता है, कोई दूसरे स्टैट्यूट से भी हो सकती है, थिन ट्रेडिंग की वजह से भी हो सकती है। स्टॉक एक्सचेंज में तो आपने कोई कॉन्ट्रावेंशन कर दिया, कोई फ्रॉड कर दिया, ठीक है ना, या आपने लिस्टिंग की फीस वगैरह नहीं पेमेंट की, तो स्टॉक एक्सचेंज आपको डिलिस्ट कर देगा। और अगर दूसरा स्टैट्यूट्स में क्या है कि कोई दूसरे लॉ का आपने कॉन्ट्रावेंशन कर दिया, जहां पर डीलिस्टिंग ही जो है पनिशमेंट है, या कोई कोर्ट ऑर्डर आ गया। और अगर थिन ट्रेडिंग है तो पेड अप कैपिटल आपकी 1 crore या लेस है, एंड इक्विटी शेयर्स आर नॉट ट्रेडेड इन लास्ट 1, आपके शेयर में ट्रेडिंग ही नहीं हो रही, लिस्टिंग करा रखी है आपने, ठीक है ना। और पेड अप कैपिटल लेस देन 1 crore और इक्वल टू 1 crore, और टोटल नंबर ऑफ शेयर्स होल्डिंग लेस देन और इक्वल टू 300, तो उस केस में भी आप कंपल्सरी डिलिस्टिंग कर देते हैं। अब एक बार डिलिस्ट हो गए, उसके बाद में लिस्ट दोबारा करवाना चाहते हो तो क्या होगा, अगर आपने वॉलंटरी डिलिस्ट हुआ था तो 5 साल से पहले नहीं हो सकती दोबारा लिस्टिंग, और कंपलसरी लिस्टिंग में अगर बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ हुई थी तो 10 साल से पहले नहीं हो सकती, और अगर ड्यू टू थिन ट्रेडिंग हुई थी तो नॉट बिफोर 5 years, ठीक है। ये है इसमें। तो ये डी लिस्टिंग वाला भी हमारा हो गया और आईसीडीआर भी हो गया, दो तो हो गए। और देखते हैं,
ये गलत हो गया था। अब है जी सब्सटेंशियल एक्विजिशन एंड टेक ओवर कोड। सब्सटेंशियल एक्विजिशन एंड टेक ओवर कोड में क्या है, बेसिकली देखिए इसमें ना दो बातें हैं। सबसे पहली बात तो ये है, आप इसको वैसे समझो कि कोई भी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी है कंपनी में तो वो 75% से होगी, ठीक है, और कोई ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन है तो मोर देन 50% से होगी। तो कोई भी आदमी अगर 25% शेयर्स एक्वायर कर लेता है, इसका क्या मतलब हो गया, ये सब्सटेंशियली टेकन ओवर दैट कंपनी, ठीक है। 25% नहीं एक्वायर किए, इसमें दो ट्रिगर पॉइंट है। एक तो 25%, अगर 25% से ज्यादा एक्वायर कर लिए किसी कंपनी ने तो वो क्या है, वो कंपनी का कुछ भला करना पाए या ना पाए लेकिन बिगाड़ जरूर सकता है, क्योंकि कोई भी स्पेशल रेजोल्यूशन पास ही नहीं होगी उसकी मर्जी के बिना। तो उस केस में क्या कहते हैं, भाई जब तुमने इतने ले लिए तो 26% और ले लो, ठीक है, भाई तुम्हें मेजोरिटी शेयर होल्डर बन जाओ, ठीक है ना। एक पब्लिक ऑफर, आप ओपन ऑफर दो कि आप ये खरीदना चाहते हो। जब आपने इतने शेयर खरीद लिए कंपनी के, इसका मतलब आप उस कंपनी को एक्वायर करना चाहते हो, ठीक है। दूसरा ट्रिगर पॉइंट आपका 5% का है इसमें, क्योंकि 5% करके भी आप उसमें अगर 5% से ज्यादा, तो अगर आपने कोई एक्वायर कर लिए तो उस केस में आपको डिस्क्लोजर देना पड़ता है। तो ये है बेसिकली सब्सटेंशियल एक्विजिशन एंड टेक ओवर कोड। कल इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। एक्वायरर कौन है, इसमें दो पार्टीज होती हैं, एक तो होती है एक्वायरर और एक होता है टारगेट कंपनी। टारगेट कंपनी जिस कंपनी के आप शेयर एक्वायर करना चाहते हो, और एक्वायरर कौन होता है, एक्वायरर वो होता है जो शेयर्स को एक्वायर करता है, वोटिंग राइट्स या कंट्रोल, ठीक है। ये कोई नेचुरल पर्सन हो सकता है, कोई कॉर्पोरेट एंटिटी हो सकती है, कोई लीगल एंटिटी हो सकती है, इवन फॉरेन नेशनल हो सकता है, कोई भी हो सकता है एक्वायरर, ठीक है। और फिर इसमें क्या है कि एक फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड शेयर्स की भी कॉन्सेप्ट है। तो फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड शेयर्स मीन शेयर्स ऑफ ए टारगेट कंपनी इन विच द ट्रेडेड टर्नओवर ऑन एनी स्टॉक एक्सचेंज ड्यूरिंग द 12 कैलेंडर months preceding the calendar month in which the public announcement is made is at least 10% of the total number of shares of such class of the target company. In case share capital is not identified, then weighted average. फिर एक कॉन्सेप्ट इसमें आती है एंटरप्राइज वैल्यू की। एंटरप्राइज वैल्यू क्या है, इट इज द वैल्यू कैलकुलेटेड मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ ए कंपनी प्लस डेट, माइनॉरिटी इंटरेस्ट एंड प्रेफर्ड शेयर्स माइनस टोटल कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। फिर एक आइडेंटिफाइड डेटा आती है, इसमें बहुत सारी कॉन्सेप्ट्स हैं, तो कल इसको डिटेल में करते हैं। तो एक तो थ्रेशोल्ड लिमिट है 25% की, ठीक है ना। तो 25% या ज्यादा आपने एक्वायर कर लिए, वो कहते हैं भाई ऐसा है, तुम एक ओपन ऑफर दे दो और ले लो तुम इस कंपनी के शेयर, ठीक है। तो पूरा डिटेल में इसको हम कल डिस्कस करते हैं, है ना जी। आज तो पूरा हो नहीं पाएगा, ये मुश्किल होगा। एक इसमें कॉन्सेप्ट आती है क्रीपिंग एक्विजिशन की, कि 25% या 75% पहुंच गए 5% क्रीपिंग करके, तो वो भी एक इसमें कॉन्सेप्ट है। तो पूरा डिटेल में समझने के लिए तो थोड़ा सा इसमें टाइम चाहिए, तो करते हैं। कल ही कंप्लीट हो पाएगा सर एलओडीआर पूरा पूरा? हाँ एलओडीआर भी, हाँ हाँ कल कर लेंगे, कोई बात नहीं। हाँ कल तो ऐसा है ना, वैसे नया बैच भी शुरू हो रहा है, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ परसों से नया बैच शुरू कर देंगे कल के बजाय। सर परसों वाला ठीक है, क्योंकि ये 26 से ही शुरू हुआ था ये वाला हाँ बैच भी। हाँ हाँ ठीक है, और ये बैच भी चलता रहेगा साथ में, वो करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है जी, कल मिलते हैं फिर। ये थोड़ा है तो टिकलिश ही, बट चलो थोड़ा समझेंगे तो कुछ ना कुछ समझ आएगा ही, ऐसी क्या बात।